This is not the first lifetime that he has held my hand, and I know that for sure. But I want to thank my cousin. Her name is Chetna. So she happened to be the very first person in our family who was called by Guruji, an amazingly blessed, strong soul. Um, and she went to Bade Mandir, and I was going through a lot of health issues. And she generally called me and she said, Didi, Delhi mein ek jagah mein gayi, and I just cannot describe that in words. It was so peaceful, it was so divine. And I said, हाँ अच्छी जगह जाके तो अच्छा ही लगता है. So that's all I told her. And but that stayed in my mind. And as she was describing the temple, the Bade Mandir, I somehow, was building a visual in my head as she was speaking. I was standing somewhere. It was all white. It seemed as if I'm at the top of the world. And she was describing how people were walking in a line. It was so clean. So I had created a visual already in my mind of Bade Mandir, not knowing anything about it. That statement stayed with me, and no coincidences in Guruji's Darbar, which I realized much later. So one night, randomly at 2:30 a.m., I wake up from the sleep, and my laptop was right next to my end table. So I pick it up, and I don't know why I'm typing Guruji Mandir USA. So I mean, like, I don't even know why am I typing that, because she never shared anything like that, and she just said दिल्ली में है एक बड़े मंदिर. उसके बाद मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं ऑप्टिमिज्म की हाइट्स टच कर रही हूँ और मैं लिखती हूँ कि गुरुजी मंदिर न्यू जर्सी यूएसए. And to my surprise, there was not much Sangat, not much information, no such websites at that time. But there is one link that pops up, and this was all happening around 2:30, 2:45 a.m. at night. And then I look at some numbers and they say for more information on Mandir, contact. So आज भी मुझे नहीं पता मैंने किन से बात की थी. Next morning, I pick up the call. I make that call. They give me the address was there on the website, but they tell me the satsang timings. They told me Sunday को satsang है, 1 o'clock होता है, आप आ जाइए. I don't know what it was, but right in that moment, my soul and I were so much in sync that I knew that I have to be at this place. And I still remember it was my Jiju's birthday. We had some plans. My sister was traveling. She so wanted me to be there with them on that weekend. I don't know anything about Guruji. I've never been to this place, but I bluntly refused at her face, telling her, "Mujhe yahan jana hai." And I don't know what that calling was, but that was my time. I was so clear in my head कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे birthday पे नहीं आना है. And she was very surprised and very upset. However, now that she's so connected and she understood in no time that what it is like for all of us when we have that calling. I walk into that मंदिर और मुझे आज भी याद है एक अजीब सी बच्चों वाली एक खुशी थी. मुझे लगा जैसे बस मुझे सब मिल गया है, पता नहीं बिना मिले बिना देखे कुछ भी. सो आई एम आउटसाइड, आई स्टिल रिमेंबर, और मैं भागती भी जा रही हूँ. और वो सैनिटाइजर वाला था, तो दे जस्ट पॉइंटेड कि ऐसे साफ कर लीजिए. मैंने कहा अच्छा. तो मैं वो कर रही हूँ, एंड आई डोंट इवन रियलाइज कि एक्साइटमेंट में मैंने शूज भी नहीं उतारे हैं. मैं उन्होंने बोला ये रहा मंदिर, ये डोर दिखाया, और मैं उस डोर में भागती हुई जा रही हूँ. एंड देन आई रिमेंबर मैनी अंकल वाज देयर, एंड ही वेरी पोलाइटली विद फोल्डेड हैंड्स सेड, आंटी जूते वहाँ उतार दीजिए. तो उन्होंने मुझे वो दिखाया जहाँ पे वो फुट स्टैंड होता था. एंड आई रियलाइज, ओ माई गॉड, मैं इतना भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मंदिर में आई हूँ तो जूते उतार दूँ. बट अजीब सी एक एक्साइटमेंट थी. एंड द मोमेंट आई वॉज वॉकिंग इन, I saw that setup, and someone clearly in my head said, "This is it." So वो आज मैं बहुत सालों बाद समझती हूँ कि हम अपने तन के लिए बहुत कुछ करते हैं, राइट. मुझे आराम चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे एक्सरसाइज चाहिए. मन के लिए बहुत कुछ करते हैं, यहाँ घूमना पसंद है, इससे मिलना पसंद है, डांस करना पसंद है. But there is one food for soul, which is your guru and the satsang, that I was always missing in my life. And I, that very first moment knew this is it. वो this is it जो मैंने अपने यहाँ पे लिखा हुआ देखा है खुली आंख से कि someone has written in my head this is it.
that day and today there has been no looking back. गुरुजी आपके चरणों में अरदास की बस चरण में रखना, शरण में रखना, अब और कोई थां पे बिल्कुल नहीं भेजना. Please hold my hand till the end. So, on that note, that was the start of my journey. And as Seema aunty rightly said, no coincidences. गुरुजी भी कहते थे जैसे कि सब तो पहले मैं हेल्थ बख्शता हाँ, फिर रिलेशनशिप ता वेल्थ ते आपे आ जानी है. So he has proved it practically, with me. I was as going back a little, going through some health concerns, and my husband used to count, by the end of an year and a half or so, कि 36 specialist मैं दिखा चुकी थी. No one was able to figure out कि issue है क्या. I couldn't stand for more than 10 minutes. And I was so thanking Guruji when Seema aunty said, बैठ के करोगे कि खड़े होके? And I could say खड़े होके. And this is the biggest satsang because मैं 10 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती थी. और थैंक यू गुरुजी कि आज खड़े होके सत्संग करा रहे हो. बस खड़ी रहूं, आपकी उसमें सेवा में तैनात रहूं, जब जहां बोलो चल के चल पहुंच सकूं. So 36 specialists, then I went to India. जब कुछ समझ नहीं आया तो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक भी कर चुके थे. That was before गुरुजी. And जब वापस आई थी तो आई ऑलवेज वॉज बचपन से शिव जी से बात करती थी मन में, एज अ फ्रेंड. लड़ाई भी करनी है उनसे, कुछ नहीं बना तो उन्हीं को सुना दो, अच्छा है तो उन्हीं से कह दो. सो मैं जब वहाँ फाइनली 1.5 साल तक ये स्ट्रगल के बाद हेल्थ की जब डॉक्टर्स फिगर आउट नहीं कर पाए, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक 6 महीने इंडिया में भी लगाए, 1-1.5 साल यहाँ भी हो गया. 2 years ऑफ माई लाइफ आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन. एंड माई डॉटर वॉज रियली यंग, लाइक शी वॉज बॉर्न, एंड वो 1-1.5 साल 2 साल तक जब तक थी दिस वॉज ऑल गोइंग ऑन. एंड टेकिंग केयर ऑफ हर विद इन दैट कंडीशन श्योरली वॉजंट very easy. However, I knew कि शिव का हाथ सिर पे था. और आज समझ में आता है कि आपके अपने ही प्रारब्ध होते हैं, हमारे अपने कोई कर्म होते हैं. जानने की भी जरूरत नहीं है अभी के हैं कभी के हैं, बट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू, be it financial losses, be it anything in health, be it anything otherwise, गुरुजी के साथ ये सीखा है, take responsibility of it. You don't really have to know why it is coming your way, and do not blame. No ABC, no abuse, no blame, no curse. तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कर्मों की कहानी क्या होती है, बट धीरे धीरे समझ आया कि वो हेल्थ इश्यूज भी आने ही थे, होने ही थे, और वो मार्ग बनना था मेरे गुरु के यहाँ जाने का. Today, I thank that stage of my life. I thank my pains more than my good moments because उस वक्त हम लोग बड़े रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक नहीं हैं. माई हस्बैंड वुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट गोइंग टू गुरुजी's टेम्पल, बट द ओनली थिंग ही फेल्ट वाज कि अब सब कर चुके हैं ना 2 साल से, कुछ तो हो नहीं रहा. यहाँ जाते हैं, कोई कहता है आर्थराइटिस ठीक हो गया, कोई कहता है वो ठीक हो गया, लंगर खाने से सब ठीक हो रहा है, तो तू चल मैं ले जाऊंगा, जितना बोलेगी जब बोलेगी तो चल मैं यहाँ ले जाता हूँ. सो फॉर हिम दैट वाज द ओनली ड्राइव दैट टुक हिम देयर. और मैं ड्राइव ही नहीं करती थी. सो माई सोल डिपेंडेंसी वॉज प्रैक्टिकली ऑन हिम दैट ही टेक्स मी, एंड ही डिड. एंड कोई मेरिकल्स नहीं हुए, मैं ओवरनाइट ठीक नहीं हो गई, मैं खड़े होके ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था. एंड आई थिंक डाउन द लेन 6 months or 7 months, once we were driving back from मंदिर, सो प्रवीण माय हस्बैंड टेल्स मी कि यार सबका तो भी सुना, वो बैठे वो रोटी सेवा करी, उनका ठीक हो गया, इनका ठीक हो गया, तेरा क्यों नहीं हो रहा? 6-7 महीने से ला रहा हूँ. सो आई सेड क्योंकि तुम मांग रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊं. I am enjoying coming here. I can't tell you what I get when I just sit there. I cry, I laugh, I think of all the good and bad things in my life. I empty my vessel and I go back home. And I don't care if I can stand or not. I don't care if I get well or not. मेरे को मेरा डॉक्टर मिल गया है, मुझे यहीं आना है. एंड मतलब श्योर इनफ कि जब वो बात भी समझ आई कि मांगना है ही नहीं, और किससे मांगे, क्यों मांगे, किस लिए मांगे, जो दिया है दर्द उसका बहुत बड़ा रीजन होता है. और जो दर्द और जो हमें सम सो कॉल्ड अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स लाइफ में सिखाते हैं, वो खुशी कभी नहीं सिखा सकती. सो कॉल्ड दुश्मन जिन्हें हम कहते हैं, जो वो हमें पाठ पढ़ाएंगे वो दोस्त नहीं पढ़ा सकते. बिकॉज आई रेड दैट इन द बुक ऑफ लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड दैट योर worldly enemies, so called, are your best of spirit friends, because they are here to teach you the lessons that you haven't learned and your soul needs to learn for the path ahead. So जय गुरु जी, वो मांगना नहीं है और मानना है. धीरे धीरे उस जर्नी में समझ आया. एंड आई वॉज नॉट लाइक रियली डूइंग वेल, आई स्टिल हैड हेल्थ कंसर्न्स. लेकिन वो कब
आते जाते सालों में कब गए, कब मैं 10 मिनट से 20 मिनट खड़ी हुई, आधा घंटा हुई, 2 घंटे हुई, और आज गुरु जी की मेहर है, ही हैज़ ग्रांटेड मी अ प्रोफेशन टू टेक केयर ऑफ, अ पर्सनल लाइफ टू अ बिज़ी पर्सनल लाइफ टू टेक केयर ऑफ, और आज आई रियलाइज़ मैं कभी-कभी 12 से 14 घंटे खड़ी हूँ, एंड इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। बट थैंक यू गुरुजी। सो हेल्थ एब्सोल्युटली गुरुजी बख्शते हैं। आप आ रहे हो, आपने तो बख्शवा लिया खुद को क्योंकि आप आ गए। उसके बाद भी जब आप आते चले जा रहे हैं, आप ये दर नहीं छोड़ रहे हैं, देन गुरुजी लिटरली टेक्स ओवर योर एंटायर फैमिली। एंड फिर भी अगर आप आते ही चले जाते हैं तो आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके गवांढन, आपके प्रोफेशनल कुलीग्स, एक एक को जहां जिससे आप होके भी गुजर गए, समझ लीजिए गुरुजी आपके साथ ही चल रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं, और एक एक का भला उन्होंने किया है। आई हैव लाइक एंडलेस सत्संग्स इफ आई स्पीक अबाउट इट, और कुछ तो ऐसे संगत गुरुजी ने मुझे दिखाई जिन्हें ब्लेस किया, जो कभी इनके दरबार में नहीं आए, and he showed me the way to heal them and help them. One satsang that comes to my mind I'll share. So this is a very distant relative, like my cousin दीदी की भी आगे एक मामी जी हैं। मैं उनसे पिछले like कभी 8-9 साल की थी तो मिली थी। So I haven't even seen her for the past 30-35 years. I don't know anything about her. So जब गुरुजी से शुरू में एक बारी जुड़े मम्मा से मैं अपनी बात कर रही थी, एंड शी सेड अनु शी इज सो अपसेट, और वो इतनी डिप्रेशन में है, शी लॉस्ट हर हस्बैंड वेरी अर्ली। तो उन्होंने शी हैड फिनाइल एक्चुअली, एंड शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड, एंड शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मेनी डेज। तो बहुत दुखी थे, और डॉक्टर्स वर लाइक स्टिल वेटिंग कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बट वी डोंट नो। एंड ममा वाज शेयरिंग दिस विद मी कि वो बेचारी कब से इतनी दुखी हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी, अब चल बच्चियों की शादी हो गई, अपने अपने घर हैं, वो बेचारी को भी मुक्ति मिले तो ठीक है। मैंने बात सुनी, एंड देन आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू मम्मा, एंड आई सेड गुरुजी डू व्हाट इज बेस्ट फॉर हर। और गुरुजी ने मुझे उस दिन एक सत्संग सुनवाया, जहां गुरुजी ने एक संगत को कहा कि कभी भी किसी के कष्ट कम हो जाए नहीं मांगना, कभी किसी को ये नहीं बोलना कि तकलीफ में है तो मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वो भी मांगना है। तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त इसके लिए और 2-4 साल या 2 घड़ी या 2 घंटे अगर ये कष्ट सह लेता है तो कितने जन्मों का मैं खत्म कर सकता हूँ। और मुक्ति मांग रहे हो तो वो भी मत करो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर द सोल। ऑलवेज से डू व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। एंड देन आई कॉल बैक माई मॉम एंड आई सेड मम्मा प्लीज, आपने शायद बड़ी अच्छी इंटेंशन से कहा, but I feel don't even wish that for her. Just say what is best for her may happen. And she actually was saved. She was fine. She came back. She didn't have a great health or a great life after that as well. And then couple of years later, 2-4 साल के बाद, one morning, मेरी अचानक से नींद खुलती है, एंड आई लिटरली मैं लेटी हुई हूँ और मैं उठ के बैठ जाती हूँ, और आई डोंट नो व्हाट वाज इट, एंड आई फेल्ट लाइक गुरुजी सिर्फ गाइड कर रहे थे कि मंत्र जाप कर। So I started doing mantra jap, and I was sitting in jap for 30 to 45 minutes. And mantra jap, trust me, Sangaji, it is the most power-packed yet the easiest form Guruji has blessed us with. कुछ भी पॉसिबल है मंत्र जाप से। सो उन्होंने क्यों मुझे रात को उठ के वो जाप कराया, एंड देन इन द एंड आई जस्ट सेड गुरुजी ये जाप जिसके लिए था उस तक पहुंचे, और मैं जानती नहीं थी कि मैं किसके लिए जाप कर रही थी, एंड आई जस्ट वेंट बैक टू स्लीप। Now when I sleep back after this job, I only hear 2 words. Guruji की आवाज है ड्रीम में, and he just says, "ओ जेडी लता मामी है ना." That's it. I only hear that. मैं नींद में उठ के फोन उठाती हूँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, आई जस्ट टेक्स्ट माई कजन दीदी, शी इज माई ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आई डू नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद हर, एंड आई टेल हर कि दीदी हाउ इज शी डूइंग, इज एवरीथिंग ओके। एंड देन शी शेयर्ड कि नहीं अनु ठीक तो नहीं है, एंड नाउ द डे यू आस्क्ड मी, उसी दिन शाम को उनकी फोटो आती है गुरुजी का येलो स्वरूप के आगे वो खड़ी हैं, एंड शी सेज शी हैज जस्ट गॉन टू हर यंगर डॉटर टुडे ओनली, एंड फॉर वॉट एवर रीजन इट डिडंट वर्क आउट विद द एल्डर डॉटर, और उनकी यंगर डॉटर गुरुजी को अभी मानने लगी है, एंड शी वॉज देयर विद हर यंगर डॉटर इन दिल्ली बिकॉज शी वॉजंट वेल। एंड मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने बस उनसे इतना बोला कि प्लीज़ उनको बोलना, क्योंकि वो मानते हैं, गुरुजी ने मुझे रात को उठा के सिर्फ जाप उनके लिए कराया है, तो जो भी है जैसा भी है लेट हिम हैंडल, बट आप मंत्र जाप करते रहिए, और जो भी जल प्रसाद आप रखते हैं वो उनको देते रहिए।
1.5 महीने तक उन्होंने ये किया. दे डिड द जॉब कंटिन्यूअसली. उनको जल प्रसाद दिया उन्होंने. After 1.5 month, she did pass away, but she passed away on the day of Guru Purnima. और उससे बड़ा दिन गुरु की शरण में जाने के लिए और क्या हो सकता था. एंड शी वॉज इन पेन फॉर सो लॉन्ग. नाउ सम माइट फील कि वी फाइनली लॉस्ट हर, हाउ इज दिस अ सत्संग. That has been my journey with Guruji, and I will rewind a little bit because ये गुरुजी ने मुझे कान पकड़ के, हाथ पकड़ के, बैठा करके जिद पे आए हैं कि तुझे ये सिखा के रहूंगा that you have to accept death. You have to accept the sickness and the pain. And not only that, with time उन्होंने मुझे ये भी सिखाया है, celebrate death. Celebrate the fact that the person is home. This is just a school that you are here for, as Seema aunty also said. कर्म काटने के लिए आए हैं और कुछ सीखने के लिए आए हैं, स्पिरिचुअली अपग्रेड होने के लिए आए हैं, बट दिस इज नॉट फॉर एवर. एंड विद टाइम गुरुजी ने ये मुझे सिखाया. एंड व्हाई वाज दैट? बिकॉज ये महाशिव हैं. शिव जी से मेरा कनेक्शन बचपन से था और मैं बहुत नाराज़ हुई थी शिव जी से. एंड आई जस्ट लॉस्ट ऑल कनेक्ट फॉर 15 years. तो एज अ चाइल्ड मैं जाती थी मंदिर में, कॉलेज में भी जाती थी, एंड आई यूज्ड टू सिट विद शिव जी एंड टॉक टू हिम फॉर आवर्स. And there was this my real mama ji, the only mama ji we had, mama ke brother, and unke 3 बच्चे थे. We had in that year lost Nani ji, and I felt okay, Shiv ji, she was elderly, आपकी जो इच्छा. Then we lost my mami ji, unki mother, because she was bedridden for 7 years. So फिर भी लगा ठीक है, she was in pain, जो आपको ठीक लगे. 3 बच्चे, अपना घर नहीं था, and my mama ji was going through a lot of losses in business at that time, and we lost him. 3 kids with no house, no parent. When we lost him, I was just 18, and to me I was really mad at Shiv ji. I said, you can't be doing this. और मैं आज भी वो दिन नहीं भूलती, because I was sitting in that garden, there was a Shiva Murti, और वहाँ पे ducks होती थी बहुत सारी. So my communication with Shiv ji was, अगर ये duck यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये हो जाएगा, अगर वो डक हिलेगी तो मेरे 70% आएंगे, वो होगी तो मैं 60 मिस रह जाऊंगी, वो होगा तो मैं मेरी फ्रेंड से सॉरी बोल दूंगी, वो हिलेगी तो ठीक है, उसको बोलना पड़ेगा. एंड आई यूज्ड टू टॉक टू शिवजी लाइक दैट, एंड द डक्स वुड एक्चुअली मूव अराउंड एंड गाइड मी. तो जब मामा जी का न्यूज आया दैट ही इज वेरी सीरियस, मैं जाकर के बैठ गई और पौना घंटा 1 घंटा मैं वहां बैठी रही. मैं कहती थी ये डक हिलेगी वो ठीक हो जाएंगे, वो नहीं हिलती थी. वो हिलेगी वो ठीक हो जाएंगे, वो नहीं हिली. एंड इन दी एंड मैंने हार के बोला, कोई भी डक अगर अपनी जगह पे खड़े खड़े पैर ऐसे भी कर देगी ना, मामा जी ठीक हो जाएंगे. एंड संगत जी, फॉर 45 minutes plus nothing happened. Shivji was right there. I was right there, 1-to-1 with him, just like I still am with Guruji. वो नहीं हिली. And my cousin came in the temple because he knew I was there to tell me that we lost him and I'm going. Would you like to come? And I said, मैं नहीं आऊंगी, ना मैं मंदिर आऊंगी ना मैं वहां आऊंगी. That was my big disconnect from Shiva. और उसके बाद 15 साल भगवान है मानती हूँ, सब पता था, लेकिन उसके बाद एक कनेक्शन जो था वो मैंने तोड़ दिया. और मैं उनसे ये कहती थी, ठीक है आपसे डरना तो पड़ेगा ना क्योंकि आप भगवान हो, तो ठीक है डरूंगी, बट आई कांट लव यू बैक. आई जस्ट कैन नॉट लव यू बैक. एंड गुरु जी जानते थे कौन सा वक्त सही था. वेन ही कॉल्ड मी बैक, आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली शिव जी हैं महाशिव के रूप में, इस रूप में गुरु की फॉर्म में आ गए. अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है. सो शुरू शुरू में गुरुजी ने हमें एक ट्रिप ब्लेस किया जब हम मंदिर जाते थे विद इन 3 months. सो ही हैड सेंट अस टू ह्यूस्टन. मैं जब घर जाऊं मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस साथ आती थी. मेरे घर में बहुत सी चीजें टूटना शुरू हो गई थी. सो एवरीथिंग दैट ही डिड नॉट लाइक व्हेन ही केम बैक मंदिर से घर, तो वो घर की चीजें टूटने लग गई कि उनको हम जो नहीं अच्छा वो जाने दो. अब इस बीच में ह्यूस्टन का ट्रिप वो मुझे ब्लेस करते हैं और हम लोग वहां जाते हैं. एंड इन द होटल रूम दैट वी एम स्लीपिंग, आई सॉ गुरुजी दर्शन, और पूरा स्लाइड शो चल रहा है, आंखें बंद है. उसी होटल के रूम पे मुझे दिखता है कम से कम 15-20 स्लाइड शो की तरह गुरुजी के स्वरूप चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं. एंड देन ही शोज मी देयर इज अ बिग कुआं और एक समुंदर है, और गुरुजी ऊपर हवा में वाइट चोले में, और इस तरफ मेरे मामा जी. सो राइट देयर उन्होंने मुझे वहीं पकड़ा जहां मैं 15 साल उन्हें छोड़कर आई थी पहले, कि ये मेरे मामा जी आपने नहीं बचाए, आई एम नॉट कमिंग बैक टू यू. एंड व्हेन आई वेंट बैक टू हिम, ही शोड मी कि मुझे सब पता है. एंड ही शोड मी माय मामा जी, ही शोड मी हिमसेल्फ, एंड ही सेड ही इज फाइन एंड ही इज विद मी. दैट वाज रीअश्योरिंग. तो हम लोग चले उस पाथ पे.
एंड आफ्टर दैट आई एम सो सॉरी संगत जी, मुझे जाने क्यों यही सत्संग यहाँ बैठ कर याद आ रहे हैं, मैंने कुछ सोचा नहीं था ये बोलूँगी, पर जो गुरुजी बुलवाएं और जो किसी संगत के लिए मैसेज हो गुरुजी वही बुलवाएगा. सो आफ्टर दिस जर्नी, दिस ट्रिप यू नो, उसके बाद सितंबर की बात है, हम मार्च में गए थे गुरुजी के टेम्पल 2015 में. एंड सितंबर में वन मॉर्निंग I have this dream that my Mausa ji, who had recently passed, उनकी एज थी. So he comes in my dream and tells me मैंने 3 रोटी दे दे. तो मैं 3 रोटी बना रही हूँ पूरे ड्रीम में, कोशिश कर रही हूँ उनको दे दूँ, लेकिन मैं जब तक देने जाती हूँ ही सेज कैस्ट्रॉल में रख दे, मेरा हो गया. सो ही डजंट ईट दैट. And I don't have a good feeling about it, that usually if someone is passed away, if they ask you something, they say, you know, you need to give something. और मैं सपने में देना चाह रही थी, बनाई भी, लेकिन उन्होंने खाई नहीं. सो आई वॉज वेरी अपसेट लिटिल. मैं जोत जलाई गुरुजी के साथ बैठी, एंड आई कॉल माई मॉम और बताया कि ऐसे अंकल आए थे. एंड मम्मा ने तभी बताया कि उनकी जो मतलब उनकी बेटी की बेटी नाती जो है, शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड कल रात से. एंड वो 8 साल की बच्ची है, एंड वी डोंट नो व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग. सडनली उसको सीजर हुआ है एंड दे हैव एडमिटेड हर. और तुम, एंड शी इज़ इन कैलिफोर्निया, तुम लोग यहाँ हो, सी इफ यू कैन कॉल और डू समथिंग. आई वॉज सो स्केर्ड. आई वॉज सो स्केर्ड बिकॉज मैंने कहा गुरुजी अब नहीं. मुझे 15 साल लगे शिव के दर पे आने पे, मुझे एक और अब डेथ मत दिखा देना या ऐसा कुछ मत दिखा देना. आई कांट डील विद इट. बट गुरुजी हैं, एज आई सेड ना, वो जिद पे थे कि बेटा तू यही सीखने आई है इस जन्म में, ये तो सीखना ही पड़ेगा. ही मेड मी टेक सम जल प्रसाद. उनके वहाँ तक हम गए. बहुत गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, मुझे वहाँ ड्रीम दिया. किस कोई उनकी फ्रेंड रोटी लाई, उस पर ओम आया. हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिलता चाय प्रसाद, उनकी एक दूसरी फ्रेंड ला करके चाय लेकर आई. टू मीट वॉज प्रसाद ओनली, एंड आई वॉज ओनली फीलिंग हैप्पी कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं. अब वो कनेक्शन होता ना कि गुरुजी हैं मतलब सब सही होगा, गुरुजी हैं मतलब बच्चा ठीक होगा, गुरुजी हैं सब कुछ, यू नो, लाइक हैज टू बी व्हाट इन माय डेफिनेशन इज राइट, बट नॉट हिज डेफिनेशन. तो वो उस वक्त बहुत ज़रूरी था उनको मुझे समझाना, पर मैं नहीं समझना चाहती थी. इट वॉज जस्ट एन 8-year-old kid. Why would I understand? I understand my nani was old, my mommy was sick, my mama ji, for whatever reason, you know, you felt right, but don't do this. अब वहाँ मैं बहुत होपफुल थी, बहुत पॉजिटिव थी. गुरुजी का जल प्रसाद उस बच्चे के पास मैं पूरी रात बैठती थी आईसीयू में. सो वेन एवर आई वुड पुट द जल प्रसाद ऑन हर हार्ट, तो उसका एक्चुअली हार्ट बीट, यू नो, वहाँ दिखाते थे बढ़ गया है. वेन एवर आई वुड गिव हर लिटिल यहाँ पे, तो उनका उसका ब्रेन एक्टिविटी दिखता था. सो आई हैड अगेन मोर होप कि दिस इज हैपनिंग, तो ये तो सब बड़े बढ़िया ही हो रहा है गुरुजी, आई एम सो हैप्पी. बट एक अरदास जब गुरुजी ने मुझे वहाँ पे, आज भी याद है कि एक ड्रीम दिया, उसमें 4 सीढ़ी दिखाई. और मैं सुबह सुबह उठी थी 5:30 बजे, बिकॉज आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल. और 4 सीढ़ी में से गुरुजी मेहरून से चोले में थे, एंड ही वॉक डाउन 2 स्टेप्स, और वो रुक गए. और बहुत सी संगत है, बट इट्स ऑल ब्लैक शेडो में. और वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो कांजी आई है. तो गुरुजी कहते हैं तुम लोग पहले पी लो, और गुरुजी एंड में आ रहे हैं. बहुत से लोग चले गए. अब मुझे आज तक नहीं पता कि पाकिस्तान से कांजी आई है का मतलब क्या है. गुरुजी की दुनिया को समझना बहुत मुश्किल है. बट 2 सीढ़ी पे रुके थे और 2 रह गई थी. एंड 2 दिन से हम वहाँ थे. और तब मेरे मन में थोड़ा दोनों बातें आई कि मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने उनसे बस ये अरदास की कि मेरे सामने कुछ मत करना, अगर कुछ खराब होना है तो लेट मी गो. आई कैन नॉट हैव दैट विजन, मतलब मैं वो साइट और वो मेमोरी लेके नहीं जा पाऊंगी. वी हैड आवर फ्लाइट. शी वॉज ओके. आई मीन कुछ कुछ चल रहा था, बोल रहे थे कभी ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड कर रही है, कभी नहीं कर रही है. इट वॉज ऑल ऑन गोइंग, एंड वी हैड टू कम बैक. 2 days ऑल्सो लेटर ये सब चला. एंड देन फाइनली 2 दिन बाद जो दिखाया था कि 2 सीढ़ी उतर चुकी है, 2 रहती है, वी लॉस्ट हर. इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट. लेकिन अब इतना पता था कि मैं ये दर्द छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये छोड़ूं तो जाऊं कहाँ. देयर वॉज नो अदर वे, देयर वॉज नो अदर प्लेस. हु एल्स विल हेल्प मी वॉक नाउ. आई हैड टू बी हेयर. सो गुरुजी की मेहर थी कि जब मैं उसको, जब भी यहाँ आती थी बहुत रोती थी उसको याद करके. लंगर करते हुए बहुत रोती थी. और गुरुजी उसी दिन सत्संग सुना देते थे. गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि एक आंटी बच्चे मांग रही हैं, और गुरुजी कहते ने कि बच्चियां नु ना मंगया करो, मंगी चीज वापस देन पैनी है. तो ये उन्होंने बोला कि मांगो नहीं बच्चे, वापस देने पड़ते हैं. फिर गुरुजी ने
एंड आई नो कि वो बेटी उनकी, शी वॉज वेरी ब्लेस्ड, बट एक बेटा था और 8 साल बाद वो हुई थी, एंड शी रियली वांटेड अ डॉटर, तो मांग मांग के ही शायद ली थी। बट खैर जितना उसका साथ था, ब्यूटीफुल बेबी। उसके बाद गुरुजी ने दूसरा सत्संग सुनाया जब उनके संगत में एक आंटी मुंडा मांगती थी बहुत, और वो कहती रहती थी और गुरुजी 2-3 बार मना करते थे, लेकिन फिर शिव जी कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, कि अगर तेरी बड़ी इच्छा है तो वो दे देते हैं। एंड उन्होंने दिया, और उन्होंने बोला अंकल को, उनके हस्बैंड को बताया भी था, that आई एम गिविंग यू अ सन, ही विल बी 12 years old, तुम उसका बर्थडे मना रहे होगे, ये शब्द चल रहा होगा, एंड यू विल लूज हिम। ये भी सुनवाया उस वक्त। सो धीरे 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 कहीं ना कहीं ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी कि जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे ही होनी होती हैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो वो एक्सेप्टेंस कहना आसान है, करने में वक्त लगता है, एंड यू हैव टू हैव रियल इंसिडेंसेस हिटिंग इन योर फेस, यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन to finally come over it. There is no battle won without swimming in the ocean. No, never. वो गुरुजी ने धीरे धीरे सिखाया, और आज मैं यही कहती हूँ कि अब कुछ भी होता है मुझे लगता है यार गुरुजी आपके पास है, जो गया आपके पास है। मतलब वो जितनी मौज कर रहे हैं, हम तो फिर फंसे पड़े हैं। तो वो जो उन्होंने मुझे 360 डिग्री टर्न किया वहां से, कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी डेथ, और यहाँ बोलते हैं कि हम ही फंसे पड़े हैं, हमें भी ले चलो, वो कहाँ, वो लोग तो ऐश कर रहे हैं आपके साथ। इस तरह से गुरुजी ने बहुत बहुत बख्शिश करी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं बहुत ब्रीफली अपने फैमिली का हेल्थ के में बारे में ज़रूर बोलूँगी। मेरे पापा को एक लंग डिजीज़ डिटेक्ट हुआ था, एंड ही डिडंट बिलीव इन गुरुजी मच, एंड आई जस्ट सेड कि ठीक है, आप मेरे विश्वास पे बड़े मंदिर से एक बारी चक्कर काटा, और जल प्रसाद अगर कोई दे, आपको मिल जाए तो ले आना। दैट्स ऑल ही डिड। एंड 3 months लेटर, इस दौरान उनको सिंगापुर भेजा गुरुजी ने मेरे ब्रदर के पास, और बहुत सत्संग अटेंड कराए, बहुत लंगर खिलवाया and everything. And 3 months later, he was not taking his medicines on time, and mama was worried, and we said कि आप दिखा दो, ऐसे मत करो। So when he went back and doctor did his report, अब औरों का सुनते थे ना तो लगता था अच्छा हाँ होता ही होगा, ऐसा नहीं कि बिलीफ नहीं है, but it is something else when it happens with you. So we knew that he has ILD, which has no cure. Doctor had said कि medications देंगे, फिर सिलेंडर पे आएंगे, and that's how he'll be able to breathe eventually, क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स में ठीक से नहीं जा रहा है। और वी वर ऑल प्रिपेयर्ड, कोई शिकायत नहीं थी गुरुजी से। इसका भी शुक्राना किया कि पता नहीं गुरुजी और क्या लिखा था आपने, इसमें काट दिया होगा, तो चलो ठीक है। देयर वाज नो, कोई टेंशन था ही नहीं, कोई कंसर्न नहीं था। मांग भी खत्म हो गई थी, तब तक वो ट्रेनिंग मिल गई थी कि नहीं मांगना है। और 3 months लेटर वो कैजुअल उस पे जाते हैं, और डॉक्टर बेचारा वही ऐसे सर पकड़ के बैठा है कि आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज योर रिपोर्ट्स डज नॉट शो दैट यू हैव ILD, and as a doctor I cannot not give you the medicine because this problem does not have a cure. फिर बायोप्सी रीरन की गई, दोबारा से हुआ, एंड ही सेड अंकल जी जो कर रहे हो ना करते रहो। एंड देन माय मॉम सेड बच्चे ना गुरुजी को बड़ा मानते हैं, और गुरुजी का ही होगा कोई कमाल। तो कहते हैं आंटी बस ठीक है, उनका भी। तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ, हाथ तो जी हमारे होते हैं, लेकिन उन्हीं की शफा हो तो ही कोई ठीक होता है। तो आप जो कर रहे हो आप करते रहो, कोई तकलीफ हो तो आ जाना। अब इस बात को 2-2.5 साल हो गए, ही इज ऑल फाइन। My mom was eating 29 plus medicines in a day. She had autoimmune, thyroid, diabetes, बीपी, एंड यू नेम इट शी हैज इट। जैसे उन्होंने पूरा वो ले रखा हो कि मुझे ही सब दे दो दुनिया भर का। तो ऐसा हाल था उनका, बट अ वेरी कंटेंटेड पॉजिटिव पर्सन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट। गुरुजी ने उनको ऐसा अपने साथ लगाया, अमृत वेला की दात बख्शी। एंड अब वो 2-3 साल हो गए उनको, शील वेकअप एट 2:30, डू अमृत वेला, बहुत जुड़ी हुई है गुरुजी से। एंड एक दिन वो सत्संग सुन रही है किसी आंटी का, एंड वो आंटी कहती है मैं जो तू जानती सी ना, मैं 30 दवाइयां एक दिन च खांदी सी, हुण वो कद इंनी कम हो गई मैनू तो पता ही नहीं चला। एंड देन माई मॉम रियलाइज कि अन्नू मैं तो सच में अब 2 गोलियां खा रही हूँ, मैं भी तो 29 या 26 गोलियां खाती थी दिन की। And she didn't realize it until she heard that satsang of someone else. And I was like, wow, Jai Guruji. Needless to say, my in-laws have been immensely blessed. My mother-in-law, उनका heart 20% काम कर रहा था, and she had no symptoms. Nobody knew what's going on. मेरे देवर को डिस्चार्ज कराने गई, he had dengue and she just fainted there. उनको एडमिट कर लिया, ग्लूकोज चढ़ा दिया, टेस्ट हुए, पता लगा हार्ट 20% काम कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा। और यहाँ पे गुरुजी मुझे एक बार गलती से इसको डेंटिस्ट के पास लेके जा रही हूँ बेटी को, और मैं देख रही हूँ खुल क्यों नहीं रहा, एंड इट वाज अ फ्यूनरल होम। मुझे वहाँ खड़ा कर दिया व्हेन माय मदर इन लॉ वाज इन ICU इन द हॉस्पिटल।
मैं बहुत डर गई। इसको एक बार छोड़ने गई स्कूल, इसके स्कूल के पीछे एक्चुअली वो है पूरा लाइक क्रिमेशन ग्राउंड, जो मुझे पता नहीं था, आज से पहले देखा नहीं। एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड कि गुरुजी व्हाई यू गिविंग मी दीज साइंस, और ऐसे कैसे उनका हार्ट 20% काम कर रहा है। देन लेटर शी सेड, मैं जब आईसीयू में थी, कोई साथ में उनके बेड पे एक आंटी जी आई हुई हैं, और जोर जोर से हर बात पे जय गुरुजी जय गुरुजी, बचा लो गुरुजी जय गुरुजी। वो बोली जाए और सॉरी और वो बोली जाए, और उनके साथ गुरुजी थे, वो मुझे कॉन्फर्मेशन मिल गई। आई नॉट गो इन डिटेल, बट उनका हार्ट मुझे नहीं पता कैसे, बट सबने सर्जरी बोला था, बाईपास होगा, सब होगा। एंड देन शी मीट्स वन डॉक्टर हु वाज वेरी एडमेंट कि नहीं आंटी जी, पहले मैं मेडिकेशन ट्राई करूंगा फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, नहीं हुआ तो हम करेंगे। ही वाज सो एडमेंट, एंड देन she started to show some improvements slowly but steadily. When I went to India, I said, can I meet the doctor? And I go to this doctor, and मम्मी ने ऐसे mention किया कि ये ना गुरुजी को मानते हैं। So he said, oh yeah, I have had the fortune to touch his lotus feet. And he has met गुरुजी in person, और वो डॉक्टर उनको दिया जो उन्हें भी नहीं पता था कि गुरुजी से जुड़े हैं। This is how he is taking care of your family। जब आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ सब टेक केयर हो रहा है। आंटी 2 मिनट है, एक एक छोटा सा लास्ट हाँ एंड करती हूँ। सो नॉट ओनली बिग थिंग्स, आई रियली वांटेड टू शेयर दिस सत्संग कि बहुत ही क्यूटली गुरुजी आपके एक एक सेकंड का हिसाब रखते हैं और आपको गाइड करते हैं। तो मैं कल का सत्संग शेयर करती हूँ कि दिवाली सत्संग पे गए थे, वी डिड फायर वर्क्स एवरीथिंग। माई कार वॉज ऑन अ वेरी लो फ्यूल, तो मुझे पता था 1:30 पे आऊंगी, और राइट जाके पेट्रोल पंप होता है, राइट, मतलब गैस स्टेशन है, तो वहीं से भरवाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है बट इट्स ओके, लो फ्यूल है, चाहिए तो सही। सो आई एम लाइक राइट एट द रेड लाइट, राइट लेने लगी हूँ, एक गाड़ी सामने से आती है, उसका लाइसेंस प्लेट में बहुत देखती हूँ, गुरुजी दिखाते हैं, तो उस पर लिखा था LFT, तो लगा बोल रहे हैं लेफ्ट, ये राइट नहीं लेना, लेफ्ट ले ले। सो आई टर्न लेफ्ट, एंड एक्चुअली वहां पे मैं जा रही हूँ, तो बिल्कुल ऑन द वे मेरे घर पे एक जो न्यू एक वावा का गैस स्टेशन खुला, आई डेंट नो कि वो ओपन होगा, बट उसका एक ही वो वाला खुला हुआ था, बाकी सब उसने ऑरेंज वो कोन्स लगा दिए थे, और मेरा पेट्रोल भरा, और मैं वहां से लेफ्ट लेके आ गई। एंड एक और बताती हूँ, मैं ड्राइव कर रही थी, सो आई वाज कमिंग बैक, और जीपीएस ने दिखाया जैसे कि ये वाला टर्न या नेक्स्ट, एंड आई टॉक टू गुरुजी फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो मैं उन्हें बोल रही हूँ कि गुरुजी ये वाला लूं या वो 2 मिनट स्लोअर वाला टर्न ले लूं, कौन सा लूं। और शब्द चल रहा था, इबादत कर अंदे नाल गल बंदी है। तो जब मैं पहले वाले कट पे पहुंची, तो लाइन आती है कि सतिंद्रा ए पगडंडी तेनू पार नहीं लौना, ठीक है, तो मैंने वो मिस कर दी, और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे पहुंचती हूँ, तो लाइन आती है, ओ पगडंडी पढ़ जेड़ी गुणा दे वल बन दी है। और मैंने वो ली, एंड यू वोंट बिलीव, मुझे नहीं पता उसको लेने से क्या होता, बट व्हेन आई टुक दैट, आई रीच्ड होम 10 seconds बिफोर माई हाउस, मेरा पूरा फ्लैट टायर था। एंड आई न्यू ही वॉज गाइडिंग मी कि वो, मतलब आप सोचिए, जीपीएस पे 2 मिनट स्लोअर फास्टर में, इफ यू आर कनेक्टिंग टू हिम, ही विल गाइड यू। तो मेरी लाइफ का स्टेयरिंग, मेरी गाड़ी का स्टेयरिंग इनके हाथ में है, लेफ्ट राइट इनके हाथ में है, और बस ऐसे ही रहे मेरा भी और आप सबका भी। हैप्पी दिवाली, जय गुरु जी।